Good morning. Good morning, friends. Good morning, friends. So yesterday we studied how to solve questions based on sine rule in case of triangle. So we can derive some properties of triangle or relations between sides and angles in terms of sine rule. Also, we have solved sums in which we can find unknown elements of triangle. Now, in this chapter, the next part is to study the cosine rule and projection rule. But before that, take down one more important result which is based on sine rule. It is known as Napier's formula or Napier's analog. See, the results are like this. Tan of A minus B upon 2 is equal to. Now, when it is A minus B, when angles A and B are given here, then see how to write the right hand side of this identity. Remember here, once again I repeat, when it is angle A and angle B, then on the right hand side of this identity, it is A minus B upon A plus B, small a, small b. And these are nothing but sides opposite to angles A and B into it is tan of C by 2. Now read this formula. So this is Napier's analogy. So tan plus 1 minute tan C by 2, that will be on the left side. Should be called C. If you take this on the left hand side, tan A minus B into then that will be tan. Now this is angle C here. Now similarly, now you can write this for any two other angles of triangle ABC. Tan B minus C upon 2. And we can write this as P minus C upon B plus C into cot. Now B and C are there. So the third angle is A. So write A by 2 here. And similarly, third one, it is tan of C minus A upon 2 is equal to C minus A upon C plus A into cot of B by 2. So in this way, see if in theory, if proof is required for this, the question is prove this, prove Napier's analogy. Then we have to start from this element
A minus B upon A plus B or any of this. And then using sign rule and using factorization formula, you can derive this result. Because A minus B, A plus B, we can write in terms of sin A minus sin B type. Using that sign rule, A upon sin A, B upon sin B, C upon sin C is equal to K. Right? So, using sign rule, you can prove this. So, these are the Napier's rule. Now, we are going to study one important property of the triangle, that is cosine rule. Cosine rule, or you can call it as cosine formula. Now, in any triangle, consider triangle ABC, and with usual notations. Usual notation means small ABC letters represents length of sides opposite to angles ABC respectively. Now, in this case, we can write cosine rule. Cosine rule gives the cosine of any angle. That is formula for cosine. For example, cos A. Now, this formula can be used if all the three sides are given and we have to find angles. So, when three sides are given, then to find the angles, we can use this cosine formula. Now, see how to write cosine of angle A. See here. When you write cosine of A, first of all, consider adjacent sides of that angle. This angle is BC, BC. So, first of all, consider sides of this angle A, which is in consideration. So, angle A, so adjacent sides are B and C. So, here it is B square plus C square and minus square of the remaining, that is opposite, A square. And then in denominator, we have to write twice of B, where B and C are again adjacent sides. So this is the method that you can write cos A. Suppose that write cosine of angle B, then remember the pattern to write the formula. So first of all, consider adjacent sides of this angle B. Now B, angle B, so adjacent sides are A and B, C, so lengths are C and A. So first of all, I will take here C square, then plus A square and minus the remaining side. And upon 2C, again adjacent sides. And by the same method, you can write cos C. Now adjacent sides are having length A and B. So here first of all I will take A square, next will be B square and minus C square upon 2A. So this is known as the cosine. So observe this, note down this cosine rule. Now these rules with this formula we can write in another simplest form. Same formula but just by rearranging terms. For example, this first one which is for cos A, we can write this formula as, see here, A square is equal to, we can write this formula in terms of A square. So A square will be equal to B square plus C square minus 2BC into cos A.
by rearranging terms. Also, we can write formula for b square as b square is equal to c square plus a square minus 2ca cos b, and third one is c square. We can write c square as a square plus b square minus 2ab into cos c. क्वेश्चन में कभी हमें ये फॉर्मेट यूजफुल होता है सब्स्टिट्यूशन करते वक्त और सिंपलीफाई करते वक्त, कभी ये फॉर्मेट यूजफुल होता है. Simply if three sides are given and we have to find angle, any angle, then directly use this formula. But in some examples, in some applications, we need this format of this side. Now here, how we get this? A square equal to b square plus c square minus 2bc cos. I will explain you this in short. You can write that proof afterwards. Just here, explanation. Consider triangle ABC. Now suppose we have to derive a square equal to b square plus c square minus 2bc cos. It is for cos A. Now, for the proof, we are going to consider triangle ABC in xy plane. Consider triangle position in xy plane such that vertex A, to find this proof, to derive this, consider vertex A as origin. Here I will take vertex A. Now take B or C on x-axis. Suppose B here, and then triangle ABC. Now because of this arrangement here, now consider this usual notation. According to usual notation, side opposite to A, so this is A, this is B, and this is C. Now we are going to use the polar coordinate system. Only we can discuss this polar coordinate system. If this angle is theta and if the distance is r, then this point P is having polar coordinates r and theta. Okay, polar coordinates are r and theta. Now write Cartesian coordinates in terms of this polar coordinate r. So what is P? X coordinate becomes r cos theta and y coordinate is r sin theta. Now using this system of coordinates, we are going to write coordinates of B and C. First take this point C, vertex B. Now distance is B, is equivalent to r here, and this angle that we are going to consider A as A. So what about this C? X coordinate will be B cos A and y coordinate r sin theta, as it is B sin A. So these are the coordinates of vertex C in terms of these polar coordinates B and angle A. Now point B, for B, it is on x-axis. B is on x-axis and distance from origin is C. So x coordinate becomes C and y coordinate obviously 0 since it is on x-axis. Now we are going to derive this formula A square. Now A square means C. In this triangle ABC, now we have coordinates of B and C. Now this BC, we have coordinates of B as well as C. Consider this B as x1, y1. Coordinates of C as x2, y2. And then by this formula, I hope you remember this formula. So BC is equal to square root of x2 minus x1 square
plus y2 minus y1. So you can use the distance formula. Now BC, what is the length of BC? Length of BC is A. Getting this? So B is equal to A. Now to remove this square root, taking square on both sides. So BC is A, therefore I will take that A square is equal. Now substitute x2 minus x1. What is x2 here? It is B cos A minus C double bracket square plus y2 minus y1 square. What is y2? It is B sin A minus 0 square. I hope you can complete the remaining part. Write expansion for both the terms and then you will get this first quadrant, A square. So try it. Write the expansion and simplify. Write the expansion of B cos A So I think some students are expecting repetition for these coordinates. See, this is the polar coordinate system that already we discussed. So this R is called as the length of this OP and theta is called as vectorial angle on the pole. So these are the polar coordinates R and theta, and polar coordinates R and theta can be expressed in terms of Cartesian coordinates as x and y. So x is r cos theta, y is r sin theta. And using this method here, see here r means b. Compare this figure with angle A. Angle A means this is theta. Measure of this angle is A. Okay. This length is C. This point is on x-axis. So distance from origin. This is origin. As I told today, that's right. What is the first thing? Remember, to find this in terms of cos A, consider A as origin. So this is origin, so this is the distance C. So B is C comma 0. It's on x-axis, so y 0, and coordinates of C are obtained by using this method, r cos theta, r sin theta. R means your length of AC, B, therefore it is B cos B sin. And next is distance formula. So this is very simple. Distance formula x2 minus x1 square y2 minus y1. x2 minus x1 square y2 minus y1. That is substitution. Now expand this and simplify it, and you will get exact result here. Also, while simplifying this, we have to use identity. Remember, while simplifying this next step, we need this identity. Sin square A plus cos square A1. Because this term will be b square cos square, b square sin square, addition, identity, that term will be b square. C square is already there, and this term by the middle term of the expansion will get. So I hope you have finished this. Got the formula. Okay, very good. So this is the sine rule. So let us solve a question based on this. Oh, sorry, cosine rule. So question based on cosine.
See the question. Two BC cos A, two common, plus CA into cos B plus AB into cos C is equal to. First option is 0. Second option is A square plus B square minus C square. Third option is A square plus C square is equal to 2B square. And the fourth option, I'll take here. And this fourth option is A square plus B square plus C square. Now using cosine rule, you can simplify this. Use cosine rule for it. See what is given here? 2BC cos A plus 2CA cos B plus 2AB cos C. Open the bracket, multiply by 2 to each and every. 2BC into bracket. Now use cosine rule here. It is A square plus B square minus C square upon 2. It is cos A here. So cos A. So it is B square plus C square minus A square upon 2BC plus 2CA into cos B C square plus A square minus B square upon 2CA plus 2AB into cos C is A square plus B square minus C square upon 2AB. Simplify this. Simplify this and the option. So I hope you can simplify this. Now this is not difficult for you to simplify this because this comes to BC, 2CA, 2AB. This will get cancelled. Yes. I hope you have finished this one. Right? And I hope your answer is D. After simplifying, it is D. Because B square plus C square minus A square, 2CA, 2CA, 2AB cancel this, plus C square plus A square minus B square, plus A square plus B square minus C square. Now this C square or this B square will cancel with this B square, plus C square with minus C square, and minus A square with plus A square. And remaining terms are A square plus B square plus in triangle ABC. Angle A pi by 3. Angle A is pi by 3. Small b equal to 3. Small c is equal to 8. When radius of circumcircle of triangle ABC is. And these are the options.
So these are the options. See what is given. One angle is given and two sides are given. One angle and two sides are given. So there is sine rule as well as cosine rule for use. But remember here, in case of sine rule, when it is applicable, if two sides are given and if any one of their opposite angles is given, then it is convenient to use sine rule. So B and C are given and their opposite angles are angle B and angle C, but it is not given. So here, first of all, find the third side A by using cosine rule. So first of all, find the third side by using cosine rule. So use this formula, A square is equal to B square plus C square minus 2BC cos A. Using this formula, find third side of the triangle. So B square, B is 3, so it is 9, C is 8, so C square is 64, minus 2BC, product 83, 24 into 2 is 48 into cos of pi by. Now I hope you can simplify this and find the value of A square. Find this value of A square. And once you get value of A from this, using sine rule. What is sine rule? We know the sine rule, sides are in proportion to sine of the angle. It's A upon sine A equal to B upon sine B is equal to C upon sine C is equal to 2R. So use this formula, but before that you have to find A from this. So solve the remaining part. Find A and then try to find R from this. Yes, try, friends. Put the value of cos pi by 3 and solve. चलो देखते हैं किसने सॉल्व किया, किसने सॉल्व किया है ये औदुंबर. औदुंबर करेक्ट, गुड. Yes, Audumbar is first to solve this. Any other student? कृष्णा, ओके बेटा कैलकुलेशन फिर से करो. कैलकुलेशन देखो एक बार. चेक योर कैलकुलेशंस. यस, और कौन है? महेश, वेरी गुड. यस, क्या हो गया बेटा साक्षी? नीलेश, check your answer. Two R is A upon sine A. Remember, 2R is A upon sine A, and we have to find the value of R.
So first one, 64 plus 9 is 73. 73 minus it is 48 into half. This value is half. So this is 73 minus 24 and it is 49. So A is 7. ये साइड है इसलिए हमें प्लस ही लेना है a स्क्वायर. तो a square a is 7. So it is 7 upon sin a. A क्या है pi by 3. Pi by 3 is sin 60. And what the value of this? It is root by 2 is equal to 2r. So देखो कैलकुलेशन करो प्रॉपर्ली. ये देखो यहाँ से r मिलना चाहिए. So multiply by 2 here. That will be 14 by 3. But 14 by 3 is not the answer. This is not the answer. 14 by 3 value of 2r. So और 2 से divide करना होगा. So after simplifying this, you will get r is equal to 7 by 3. So ये है आंसर. Okay, next question देखते हैं. Next question देखो. ऐसा है 1 upon a plus c is equal to 1 upon b plus c. ये प्लस है यहाँ पर. Plus 1 upon b plus c is equal to 3 upon a plus b plus c. Then angle C is first option है pi by 3. Second option है pi by 6. Third है 2 pi by 3. And fourth option है none of these. देखो from the given condition you have to find angle C. So simplify it. What is given? 1 upon a plus c plus 1 upon b plus c is equal to 3 upon a plus b plus c. Now try to simplify this. Try the simplification for this. देखो a plus b है यहाँ a plus c है यहाँ b plus c है. So it will be convenient if you multiply by a plus b plus c on both the sides. तो मैं क्या करूँगा दोनों साइड को a plus b plus c से मल्टीप्लाई करने वाला. तो देखो क्या मिलेगा a plus b plus c upon a plus c, a plus b plus c upon b plus c equal to ये हो जाएगा. अब यहाँ मैं स्प्लिट करता हूँ a plus b plus c को स्प्लिट करते हैं यहाँ पर. a plus c upon a plus c होगा 1 और ये होगा b upon a plus c बचेगा. और यहाँ पर भी b plus c है तो b plus c सेपरेट किया तो b plus c upon b plus c हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा a upon b plus c और 3 एज इट इज. आगे सिंपलीफाई करो इसको. सिंपलीफाई दिस. और सिंपलीफिकेशन के बाद ही पता चलेगा कि क्या रूल यूज करना होगा. साइन रूल यूज करना होगा या फिर दूसरे रूल यूज करना होगा. देखो आगे सिंपलीफाई कर दो. ये 1 1 2 3 में से कट हो जाएगा तो बाकी बचेगा यहाँ पर b upon a plus c plus a upon b plus c is equal to 1. Therefore b into b plus c plus a into a plus c मल्टीप्लाई किया और इसका एलसीएम होता है a plus c into b plus c equal to 1. Therefore अब ये b into b plus c a into a plus c को मैं एक्सपांड करने वाला हूँ.
अब ये मिलेगा मुझे बी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ पर मिलेगा ए स्क्वायर प्लस सी ए, और ये सी लिख सकते हो इज इक्वल टू, ये फैक्टर में यहाँ वन को राइट हैंड साइड में, and now expand this also, and you will get some relation between ABC, and from that to know how we reach to angle C. एंगल C तक जाना है, लेकिन ये सिंप्लीफाई करने के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ कौन सा रूल कैसे यूज होगा. So expand this also and simplify करो. क्या मिल गया बेटा? बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या है राइट हैंड साइड, एक तो टर्म ए बी है प्लस ए सी है प्लस बी सी है, और ये सी स्क्वायर है. अब इनमें से क्या कट होगा? ये बी सी, subtract it from both the sides, CA also from both the sides, and now here we have b square plus a square, और ये जो c स्क्वायर है मैं यहाँ पर ट्रांसफर करूंगी तो माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. देखो इससे आपको कुछ पता चलेगा, यूज कोसाइन रूल. कोसाइन रूल को देखो, तीन फॉर्मूला है, उसमें से कौन सा यहाँ पर सुटेबल होगा वो आपको देखना है. बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, and we have formula. Which formula we can use here? Cos C. Cos C देखो क्या है? Cos C का formula देखो. Cos C है a square plus b square minus c square upon 2ab. तो ये जो लेफ्ट हैंड साइड है b square plus a square minus c square, क्या मैं इसको 2ab लिख सकता हूँ? 2ab cos C इक्वल टू हो जाएगा ab. अब तो इजी हो गया. Therefore, cos C is equal to half. AB कट हो गया. So cos C is equal to half. And once you get cos C, it's not difficult for you to find angle C. तो आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है. Good. So I hope it is clear to you. Okay, Sarte part. Who is that? So on. Okay. नहीं समझा सर. Okay. Okay, एक बार रिपीट करते हैं. कुछ लोगों के लिए रिपीट करता हूँ, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है रिपीट करना है उसको. देखो मैंने सिंपल सिंपल कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी था ना, तो मैंने दोनों साइड को a प्लस बी प्लस सी से मल्टीप्लाई किया. रिपीटिंग, a प्लस बी प्लस सी से यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई किया. अब यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये कट हो जाएगा, तो यहाँ बचा. यहाँ पर शायद किसी को, आप लोगों को कुछ दिक्कत हो सकती है. यहाँ पर मैंने क्या किया है, a प्लस बी प्लस सी है. देखो यहाँ a प्लस बी प्लस सी था, तो मैंने उसको ऐसे रीअरेंज किया, a प्लस सी प्लस बी. देखो अब a प्लस बी प्लस, इसको डिवाइड करना है a प्लस सी से, तो मैं ये दोनों को a प्लस सी से अलग अलग डिवाइड कर सकता हूँ ना. रिपीटिंग दिस, a प्लस सी प्लस बी जो पूरा न्यूमरेटर है उसको मैंने स्प्लिट किया,
तो a प्लस सी को a प्लस सी से डिवाइड किया तो ये क्या रहेगा बचेगा प्लस बाकी b अपॉन a प्लस सी का है। यहाँ पर भी सेम नियम b प्लस सी जो है b प्लस सी सेपरेट किया उसको b प्लस सी से डिवाइड किया 1 आया प्लस a को डिवाइड किया b प्लस सी से एज इट इज यहाँ 3 एज इट इज है तो ये 1 प्लस 1 हो गया 2 यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया 3 था तो ये आया ओके। सो किसी एक का डाउट था कि 1 पे से आया अगर यहाँ का 1 का डाउट है तो देखो a प्लस सी अपॉन a प्लस सी 1 है यहाँ b प्लस सी अपॉन b प्लस सी 1 है। अगर इस 1 में डाउट हो तो वो तो क्लियर है 3 में से ये दोनों में सब्ट्रैक्ट किए तो ये 1 बचा। उसके आगे तो एडिशन है एलसीएम होगा इन दोनों का ये a प्लस सी इंटू बी प्लस सी हो गया एलसीएम ये मल्टीप्लाई b इंटू बी प्लस सी जिसे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हो b इंटू बी प्लस a इंटू a प्लस यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो गया मेरा। अब आगे तो क्या है सिर्फ एक्सपांड किया है एक्सपेंशन के बाद ये 20 की है दोनों साइड में तो 20 कट हो गया सी एस ये भी कट हो गया तो रिमेनिंग टर्म्स b स्क्वायर रहेगा a स्क्वायर बचेगा यहाँ से c स्क्वायर बचेगा आपको लेफ्ट साइड में गया। अभी ये इसको सिंपलीफाई करने के लिए मैंने इस तरह यूज किया है कोसाइन रूट cos c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab को अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मिलेगा मुझे स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू दिस। आगे जाके ab कट हो गया तो ये रहेगा cos c इज इक्वल टू 1/2 और cos c इक्वल टू 1/2 देने से c इजीली मिल सकता है। ओके सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। आपको ये नोट डाउन करना है या फिर स्क्रीनशॉट ले ओके आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन देखो a minus b square into cos square of c by 2 plus a plus b whole square into sin square c by 2 ऑप्शन है 0 सेकंड ऑप्शन है a स्क्वायर थर्ड ऑप्शन है b स्क्वायर एंड फोर्थ ऑप्शन है c स्क्वायर। अब देखो cos स्क्वायर c by 2 sin स्क्वायर c by 2 जो टर्म्स है इसमें concentrate on these terms cos square c by 2 और sin square c by 2 इस पर concentrate करना है। concentrate on these terms once again I repeat cos square c by 2 sin square c by 2 and you can use these two results. I hope you know this 1 minus cos 2 theta होता है 2 sin square theta and 1 plus cos 2 theta होता है 2 cos square theta। इसका यूज कर सकते हो और जैसे ही दोनों टर्म्स cos में मिलेंगे कोसाइन
तो पहले ट्राई करो इसको, ये फॉर्मूला दोनों जगह साइन और क्या है, देखो फर्स्ट टर्म में a माइनस बी स्क्वायर में एल लिखने वाला हूं, इसको भी शायद एक्सपांड करना पड़ेगा लेकिन वो हम बाद में करेंगे, पहले कोसाइन में ये cos स्क्वायर c बाय 2 जो है क्या होगा, cos स्क्वायर c बाय 2 का अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, try to simplify this. What is cos square c by 2 according to this formula? It is 1 plus cos c upon 2 plus, similarly write the second term. Similarly आपको second term में लिखनी है, so I will give you this second term a plus b whole square as it is, and sin square के लिए मैं लिख रहा हूँ 1 minus cos c upon 2, so that is equal to, अब ये जो 2 है डिनोमिनेटर में, अगर इसको कॉमन लेते हैं तो ये बेहतर, एक कॉमन तो उसके बाद a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू 1, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू 1, पहले इसको लिख देते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हो गया प्लस, अब जो रिमेनिंग टर्म्स है a माइनस बी होल स्क्वायर cos c, लिख दो ये a माइनस बी होल स्क्वायर इंटू cos c, अब देखो यहाँ पर माइनस है तो माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू cos c, आगे सिंप्लीफाई करना है इसको 1 अपॉन 2 a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होता है a माइनस बी होल स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर, write the expansion of this, or even you can use a plus b whole square plus a minus b whole square is twice of a square plus twice of b square. This is identity. अगर आइडेंटिटी डायरेक्टली आप लिख नहीं सकते तो इसका एक्सपांशन लिखना है, इसका एक्सपांशन लिखना है, अलग अलग से एडिशन। आगे देखो, अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, cos c को कॉमन लेने, cos c को मैंने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में लिखा a माइनस बी स्क्वायर माइनस a प्लस बी स्क्वायर। अब आपको ये भी सिंप्लीफाई करना है, यहाँ पर भी एक्सपांशन है, यहाँ पर भी एक्सपांशन है, सबट्रैक्ट करना है, यहाँ पर एडिशन थी तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर मिल गया, यहाँ वो सबट्रैक्ट करना, हाफ एज इट इज, फिर एक बार 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर एज इट इज प्लस, अब देखो आगे cos c है, यहाँ cos c का फॉर्मूला यूज करना है कोसाइन रूल से, और इसको भी सिंप्लीफाई करना। सो कोसाइन रूल, व्हाट इज कोसाइन रूल फॉर एंगल c, एंगल c के लिए लिखना है तो ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab इनटू, इसका एक्सपेंशन आपने किया होगा, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस 4ab, आई होप यू गॉट दिस, माइनस 4ab, क्योंकि a स्क्वायर कट हो जाएगा, b स्क्वायर कट हो जाएगा, इसका मिडिल टर्म आएगा माइनस 2ab और अगेन माइनस 2ab, so that is माइनस 4ab हो गया। नाउ सिंप्लीफाई दिस पर, फिर एक बार हाफ एज इट इज, ये हो गया 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर a b है तो a कट होगा, b डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, यानी कि हो जाएगा माइनस 2
इनटू ये पूरा मल्टीप्लाई करना है इसको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। नाउ ट्राई द रिमेनिंग पार्ट एंड फाइंड द आंसर। हो जाएगा, इजी है। यहाँ पर हमने कोसाइन रूल भी यूज किया और वो डबल एंगल फॉर्मूला जो है cos 2 थीटा का, उसे भी अप्लाई किया। यस, किसी का आंसर आया है शायद। हु इज द आंसर? यशस्वी, वेरी गुड। औदुंबर, करेक्ट, गुड। यस, बस इतने ही। और लोग कहाँ गए? चलो फटाफट। सिर्फ सिंप्लीफाई करना है इसको। यस, करेक्ट कृष्णा, डी। तो डी आंसर करेक्ट है इसका। वेरी गुड आकाश, डी आंसर है। सिंप्लीफाई करने के बाद हमें मिलेगा ये सी स्क्वायर मिलेगा। अब जाने से पहले एक आखिरी लास्ट सिंपल क्वेश्चन हम लेते हैं। एक बहुत ही आसान सा सवाल है, तो ये ट्राई करना है आपको। इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी देखो क्या कंडीशन दी है। cos a लिखा है यहाँ पर। cos a is given as sin upon 2 sin c। cos a sin b sin c, then triangle ABC is option A, isosceles, option B, scaling, option C, equilateral, and option D है isosceles and right angle। देखो यहां पर सिंप्लीफाई करने के लिए, सॉल्व करने के लिए आपको कोसाइन रूल भी यूज करना है और साइन रूल भी यूज करना है। साइन रूल यूज करने से रिलेशन मिल जाएगा साइड्स में, साइड का। कैसे साइन रूल यूज कर सकते हैं? यहाँ पर साइन बी अपॉन साइन सी निकालने के लिए, जैसे कि आपको पता है ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, यानी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ये तो है साइन रूल। अब यहां से हमें साइन बी अपॉन साइन सी रेशियो मिल सकता है। अगर हम ये दोनों रेशियो में कंसीडर करेंगे तो यहां से मुझे साइन बी अपॉन साइन सी रेशियो मिल जाएगा। तो साइन बी अपॉन साइन सी रेशियो क्या होगा यहाँ पर? b/c, साइन b/टू साइन सी, b/टू सी, यानी कि आपको याद होगा अल्टरनेटो ऑन इक्वल रेशियो, ये है अल्टरनेटो, ये हो गया। अब देखो cos a है, cos a, so लेफ्ट हैंड साइड में cos a, राइट द फॉर्मूला फॉर cos a। क्या होगा cos a? b² + c² - a² अपॉन
2BC इज इक्वल, ये 1/2 एज इट इज रख दो, और ये जो रेशियो है sin b अपॉन sin c, ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, और आगे ट्राई करने से आपको मिल जाएगा रिलेशन बिटवीन साइड्स। देखो पॉसिबल है क्या? सो फाइंड आंसर फॉर दिस, क्या है देखो, simplify this remaining part. क्या है आगे? therefore b square plus c square minus a square, ये पूरा 2bc यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, half into b upon c into 2bc, so b square plus c square minus a square is equal to, ये देखो ये कट हो गया, c कट हो गया, तो यहाँ पर b square, अब ये b square subtracting b square from both the sides, c square minus a square equal to 0, और इससे ये इंप्लाई होता है कि c is equal to a, c is equal to a, अब c is equal to a अगर हम लेते हैं तो क्या हो सकता है? So I hope this is clear to you. ये जो ट्रायंगल है c इक्वल टू a, दो साइड्स इक्वल है, इसलिए ये ऑप्शन a है। हाँ, a और d नहीं हो सकता, क्योंकि d में जरूर लिखा है आइसोसेलेस, और किसी का आंसर मैंने देखा अभी कि a और d, यहाँ पर आइसोसेलेस लिखा है जरूर, लेकिन आप ये चेक कर सकते हो क्या ये राइट एंगल है या नहीं। अगर राइट एंगल होगा तो देखो c और a राइट एंगल होने के लिए क्या होना चाहिए, c इक्वल टू 45, एंगल a इक्वल टू 45 और एंगल b 90। अगर ऐसा करने से हो सकता है तो आप चेक कर सकते हैं, ये ट्रायंगल है आइसोसेलेस। तो आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और भी सम्स जो साइन कोसाइन रूल और प्रोजेक्शन रूल पे हम सॉल्व करेंगे। हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, होस्ट कर दो। होस्ट बना दो। हाँ बेटा। हाय, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब बेटा जाओ नीचे पर खाने दो। हो गया, हो गया। मुझे यहीं पर रहना। हाँ जी। देखो सबको टाटा बाय कर दो, भैया को, दीदी को। हाँ, ओके ओके। ये मेरी बेटी है, ये भी पढ़ाएगी आज। ठीक है, चलो चलो बेटा, हो गया हो गया। चलो बाबू, चल 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 चल, हो गया, पढ़ाने दो। चलो चलो। हम्म, चलो चलो, 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट।
ओके, तो आज हम लोग एक गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुड मॉर्निंग नेक्स्ट यूनिट टू प्रोटीन्स। कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े और उसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के पढ़ने के पहले वो छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर उसके यूनिट होते हैं उसको हम लोग स्टडी करेंगे, तब जाकर हम लोग को प्रोटीन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो वो प्रोटीन को अच्छा से समझने के लिए इसका एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिससे प्रोटीन बनता है, उसका नाम है एमिनो एसिड्स। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोटीन को समझने के लिए नहीं पॉलीमर्स चैप्टर नहीं है ये, लेकिन हाँ प्रोटीन इज द पॉलीमर्स, वो भी पॉलीमर्स ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ये बायोमोलिकुल्स है उसके थ्रू ये हम लोग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोग क्या बोलते हैं, वो पॉलीमर के थ्रू पढ़ रहे थे। तो आज हम लोग ये बायोमोलिकुल्स के थ्रू ये प्रोटीन्स को पढ़ेंगे और उसका एक इंग्रेडिएंट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट इंग्रेडिएंट एमिनो एसिड्स है, ठीक है ना। ओके, तो प्लीज इस पर ध्यान दिया जाए। एमिनो एसिड्स, ये इसको समझने के लिए पहले इसके नेमिंग को देखो। एक पार्ट है एमिनो और दूसरे क्या है, एसिड। यानी ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एक एमिनो ग्रुप होंगे, एमिनो ग्रुप, और दूसरा जो होगा एसिड में होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी यूं कहें कि एमिनो से मतलब ये है NH2 ग्रुप, ठीक है ना। एसिड से कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका मतलब ये है कि इससे C डबल बॉन्ड OH या इसको COOH ग्रुप ऐसे, ठीक। तो यहां पर देखो कि एमिनो एसिड की पहचान क्या है। तो एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एमाइन ग्रुप हो या एमिनो ग्रुप इसको पढ़ते हैं, और दूसरा क्या हो उसी में COOH हो। ये हमारा इसेंशियल फंक्शनल ग्रुप है, ये इसेंशियल फंक्शनल ग्रुप है, ये होना ही होना है। जितने भी एमिनो एसिड का कंपाउंड्स मिलेंगे उसमें कंपल्सरी NH2 और COH, इसीलिए इसको इसेंशियल फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। ये होना ही होना है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी कोई फंक्शनल ग्रुप हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, ये अलग बात है, लेकिन इसेंशियली ये होना आवश्यक है, ठीक है ना। और इस तरह से जो कंपाउंड्स मिलेंगे वो हमारा क्या होगा, एमिनो एसिड कहलाएगा। बहुत से एमिनो एसिड हैं, ठीक है ना, लेकिन उसमें सबसे इजी हम लोग को पढ़ना है ये अल्फा एमिनो एसिड के बारे में। सबसे ज्यादा किसके बारे में इंफॉर्मेशन हमको लेना है, अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है। क्योंकि अल्फा एमिनो एसिड से ही हमारा प्रोटीन्स बनता है। जब हम प्रोटीन की हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ध्यान से देखो, अगर प्रोटीन की अगर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये अल्फा एमिनो एसिड्स ही बनते हैं, ठीक। इसीलिए मैं इसको अच्छा से पढ़ाने के पहले इनको समझाना चाहता हूँ। अल्फा का मतलब क्या है उसे देखो। ये एमिनो एसिड लिखे तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप COH होना ही चाहिए। ये जिस कार्बन से अटैच है उस पर अगर NH2 ग्रुप लग जाए, मैं ऐसा लिख दूं तो अभी कितने खाली है इसमें देखो, 2, क्योंकि कार्बन की 4 बॉन्ड है और ये ऐसा है। इनमें COH और NH2 की अगर हम कंपेयरिंग करें सीनियरिटी पर, तो COH जो है वो हमारा ज्यादा प्रायोरिटी इसको दिया जाता है NH2 के रिस्पेक्ट में। हम लोग जैसे नोमेनक्लेचर में प्रायोरिटी ग्रुप चेक करते हैं तो उसमें सबसे उच्च किसको मिलता है, COH का। तो ये सबसे सीनियर है और ये इसके रिस्पेक्ट में जूनियर है। तो ये सीनियर ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जिस कार्बन के साथ ये अटैच होता है या नेबर कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा ग्रुप बोलते हैं, अल्फा कार्बन।
और इस अल्फा कार्बन पर NH2 अटैच है, ठीक है। तो इस तरह के जो एमिनो एसिड बनेंगे उसको हम लोग अल्फा एमिनो एसिड बोलेंगे, क्योंकि ये COH जिस कार्बन से अटैच है उसको अल्फा, उस पर अगर NH2 ग्रुप रहेगा तो ये हमारा अल्फा एमिनो एसिड्स बोलेंगे, ठीक है। अब देख लो ये कार्बन जो है वो हमारा क्या है, 4 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड तो दिख रहा है, 2 बॉन्ड खाली है। तो 2 बॉन्ड खाली है तो उसमें अल्फा एमिनो एसिड पर 1 हाइड्रोजन होते हैं और 1 हमारा वेरिएबल यूनिट होते हैं। यहाँ पर दूसरा एक यूनिट आएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल ग्रुप। ये बहुत अलग अलग होगी, ये जैसे जैसे चेंज होगा इसकी एमिनो एसिड की मोलेकुल्स की नेचर चेंज होगी, टाइप्स चेंज होगा, अलग अलग एमिनो एसिड आएगा। किसके कारण, तो इनके कारण आएगा। तो यहां पर हम सिर्फ R लिख देते हैं। R का मतलब सिर्फ अल्काइल ग्रुप ही नहीं, बल्कि R के ग्रुप का मतलब यहाँ पर ये लिखना चाहते हैं कि ये अलग अलग हो सकते हैं, वो भी अल्काइल ग्रुप भी हो सकते हैं, एराइल ग्रुप भी हो सकते हैं, सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल, सब्स्टिट्यूटेड एराइल, ये सब हो सकते हैं। यानी R क्या हो सकते हैं, अल्काइल या कोई भी सब्स्टिट्यूटेड अल्काइल, ठीक है, या एराइल या सब्स्टिट्यूटेड एराइल, ये कुछ भी हो सकते हैं। और इसके अनुसार अल्फा एमिनो एसिड अलग अलग होंगे। तो R जैसे जैसे चेंज करेगा वैसे वैसे टाइप्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड होंगे। बात समझ में आ रहा है ना? टाइप ऑफ अल्फा एमिनो एसिड किस चीज के कारण है, इस R के कारण, ठीक। तो पहले इनको ध्यान से ये देखो, ठीक है, ये R से ऐसे ऐसे आएंगे, इसको अल्फा एमिनो एसिड बोलेंगे। बीटा एमिनो एसिड भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो ये कार्बोजेलिक एसिड है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये अल्फा और ये हमारा बीटा। अगर यहां पर NH2 लग गया, यहां पर ये अलग अलग स्पेसीज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बीटा कार्बन पर NH2 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा एमिनो एसिड। अगर ये थर्ड कार्बन पर हो, जैसे मैं यहां पर लिखना चाहता हूं CHNH2, CH2, CH2, COOH। अब देखो इसमें NH2 और COH है, ये एमिनो एसिड, ये फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है अल्फा, बीटा, गामा और ये डेल्टा कार्बन। तो देख लो गामा पर NH2 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा गामा एमिनो ये एसिड्स होगा, ठीक। तो सबसे ज्यादा हम लोग को किसके बारे में पढ़ना है, अल्फा एमिनो एसिड। बीटा का क्या मतलब है, गामा का मतलब क्या है, डेल्टा के मतलब क्या है, एप्सिलॉन का मतलब क्या है। जैसे ये कार्बन आगे आगे बढ़ जाएगा इनकी नंबर क्या होगी, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे बढ़ेगा। लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग को पढ़ना है तो अल्फा एमिनो एसिड, ठीक है, ओके। तो पहले इसको कुछ नोट करेंगे अल्फा एमिनो एसिड के बारे में। ठीक है, मैं आपको अल्फा एमिनो एसिड जो नेचुरली ऑकरिंग होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 20 के बारे में हम लोग को पढ़ना है। यानी हमारे सिलेबस में अल्फा एमिनो एसिड जो है, ठीक है ना, वो 20 होते हैं, ठीक है ना। यानी 20 अल्फा एमिनो एसिड, यानी ये 20 अल्फा एमिनो एसिड के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सब्स्टिट्यूटेड मीन्स, ओके, ठीक है, नोट्स मिलेगा। 20 अल्फा एमिनो एसिड के बारे में, अल्फा एमिनो एसिड के बारे में हम लोग को पढ़ना है,
ठीक है, ये हम लोगों के बुक्स में दिया हुआ है और इसको मैं बताता हूं कि ये 20 जो है वो इसकी नाम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जैसा है, ठीक है ना, और इसको आपको रटना होगा। जैसे कुछ मैं हिंट दूंगा लेकिन आपको रटना होगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर ध्यान दे कि ये COH फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन और यहाँ पर NH2 और ये H और ये हमारा R लगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर लिख दे कि इफ R इक्वल टू H, R के जगह पर क्या हो जाए, H हो जाए। तो H होगा तो यहाँ पर H CH NH2 और ये COH, ठीक है ना। और इसको हम लोग नाम देते हैं ग्लाइसिन, ठीक है। पहले ध्यान दीजिए, ये एक ऐसा अल्फा एमिनो एसिड है जिसमें R के जगह पर क्या लिखा है, H लिखा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन बोलते हैं, ठीक है। याद रहे ना कि अल्फा एमिनो एसिड, इसका और भी कोई नाम हो सकता है। जैसे नेमिंग कैसे करेंगे तो प्लीज सुन लो, इसका और एडिशनल नाम कैसे हो गया। जैसे यहाँ पर हमने यही लिखा है CH2COH, अगर यहाँ पर CH3 रहता तो एसिटिक एसिड बोलते कि नहीं। अब इस CH2 में 2 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन के जगह पर NH2 आ गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा एमिनो एसिटिक एसिड बोलेंगे कि नहीं। अगर IUPAC नेमिंग करना है तो 2 एमिनो इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड। तो ये तो कॉमन नेम है, ये हमारा IUPAC नेम है। और ये जो हमारा है ग्लाइसिन, ये इनकी नेचर के कोरस्पॉन्डिंग, ये थोड़ा स्वीट होते हैं, ठीक है ना। और वे स्वीट के नेचर पर ग्रीक लेटर जो है वो ग्लाइसिस से स्टार्ट होता है, इसलिए ये ग्लाइसिन इसकी नाम है इसके नेचर के अनुसार। लेकिन इसकी IUPAC नेम, कॉमन नेम हम AB और AB लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ग्लाइसिन में बस आपको यही रखना है। सबके बारे में बताता हूं, एसिड, एमिनो एसिड, बेसिक क्या है, वो सब चीज के बारे में आज एक्सप्लेन करूंगा। तो दीज आर द ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन के बारे में आप जान गए कि ये वो है जिसमें R का जगह पर ये हाइड्रोजन आए। ये सब में अल्फा एमिनो एसिड में ये पार्ट जो है वो हमारा कंपल्सरी है, ये कंपल्सरी पार्ट है। सिर्फ R अलग अलग होने से इसकी अलग अलग नेम होगी, तो ये ऐसा है। तो R के जगह पर H आ गया है तो ये ऐसा है। अगर यहाँ पर एक और चीज मैं दूसरा नाम बताना चाहता हूं, उसे देखो। अगर R के जगह पर CH3 हो जाए, क्या हो जाए, CH3 हो जाए, तो देख लो ये COH कंपल्सरी है, ये अल्फा कार्बन पर NH2 लगा है, ये तो यहाँ पर R के जगह पर क्या लिख देंगे, CH3। ये भी एक एमिनो एसिड है, एमिनो एसिड है और इसका नाम है एलानिन। क्या नाम है, एलानिन। इसको ग्लाइसिन बोलते हैं और इसका नाम है एलानिन। इसका IUPAC नेम भी लिख सकते हैं, मान लो 1 2 3, ठीक है ना। तो 2 एमिनो प्रोपानोइक एसिड, ठीक है। या इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा एमिनो, ठीक है, प्रोपियोनिक एसिड, कॉमन नेम ये ऐसा है, ठीक है। तो इसमें हमारा कॉमन नेम और IUPAC नेम ज्यादा नहीं चलता है, सिर्फ ये चलता है। तो ये तो देखकर हम इजी में बता सकते हैं, लेकिन एलानिन जो है उसको याद करना होगा। एलानिन को क्या कहेंगे कि R की जगह पर क्या है, CH3 है, और R के जगह पर H हो जाए उसको हम लोग ग्लाइसिन, और इसको क्या बोलेंगे, एलानिन पढ़ेंगे। तो हमने आपको यहाँ पर 2 बता दिया, ठीक है ना। तो ये दोनों को हम फिर से एक बार बगल में लिख देता हूं, ठीक है। देख लो, अल्फा एमिनो एसिड में ये हमारा कंपल्सरी है,
NH2 और इसी को ना हम R बोले थे, इसमें R, ठीक है। अगर R इक्वल टू H था तो ये क्या था, COH NH2H, इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, ग्लाइसिन, ठीक। अब देख लो R के जगह पर हमने क्या लिखा था, CH3, तो CH3 CH और ये COH, ठीक। इसको हम लोग एलानीन लिखते हैं, ठीक। अब इसको ध्यान से देखो, ग्लाइसिन एक बड़ा सा नाम लगता है ना, और ये एलानीन ये भी बड़ा सा है, इसका शॉर्ट नेम भी है, शॉर्ट नेम। तो शॉर्ट नेम दो तरह से लिखते हैं, ठीक है ना, 3 लेटर या 1 लेटर कोड, 3 लेटर कोड। जैसे ग्लाइसिन है उसमें GLY, अगर सिर्फ ऐसा लिखा है तो इसको हम लोग ग्लाइसिन पढ़ेंगे, या 1 लेटर कोड में सिर्फ कैपिटल G लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या हो गया, ग्लाइसिन हो गया, ठीक है ना। तो 3 लेटर सिंबल में GLY और 1 लेटर कोड में G लिखेंगे। अगर यही एलानीन लिखना है तो ALA से एलानीन हो गया, या सिर्फ कैपिटल लेटर A लिख देंगे तो ये हमारा क्या होगा, एलानीन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन, इसको हम लोग GLY या G। एलानीन है तो इसको ALA या कैपिटल लेटर A। ये 3 लेटर सिंबल है और ये 1 लेटर कोड लिखते हैं, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देखो, ठीक। अब एक आता है CH3H, ऐसा, इसको आइसोप्रोपाइल ग्रुप बोलते हैं। अगर R के जगह पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो जाए, R के जगह पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप अगर हो जाए, ठीक, R के जगह पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो जाए तो इसका नाम है वेलिन, यानी हम ऐसे लिख दें, ये तो होगा ही, और इसके जगह पर CH3 इसका नाम है वेलिन, ठीक है। 3 लेटर सिस्टम में क्या लिखेंगे, VAL, और 1 लेटर कोड में क्या लिखेंगे। तो ये हमारा पहला, ये दूसरा, और ये हमारा क्या हो गया, तीसरा। प्लीज इसको नोट करो। हो गया, तो 3 है। अब चौथा में देखो, R का जगह पर आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा दे। आइसोब्यूटाइल में क्या होता है, ये 1 डिग्री होता है, ये याद रखना है, CH3 और ये CH2, इसको आइसोब्यूटाइल ग्रुप बोलते हैं। ये आइसोब्यूटाइल R का जगह पर लग जाए, यानी CH3 CH, ये CH3, ये CH NH2 और ये OH, तो इसका नाम होता है ल्यूसीन। ये क्या है, सब मैं 1 by 1 एक्सप्लेन करूंगा, नो टेक टेंशन। इसको हम क्या बोलेंगे, ल्यूसीन, ठीक है ना। दीज आर द ल्यूसीन।
अगर यहाँ पर इसकी 3 लेटर सिंबल लिखना है तो LUC लिख दीजिए, और 1 लेटर सिंबल जो होगा वो क्या लिखेंगे, L से लिखेंगे। तो ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। अगर ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप रहता कुछ ऐसा, और ये समझ में आ रहा है ना, ये हमारा आइसोप्रोपाइल है, ये हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल है, ये हम नेमिंग करते समय बताए थे, ये 2 डिग्री है। तो इसका R का जगह पर अगर ये रहे तो इसको हम लोग सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप इसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में हम ऐसे लिखेंगे CH3 CH2 CH CH3 और ये हमारा HCOH और NH2, तो इसका नाम हो जाएगा आइसोल्यूसिन। इसका 3 लेटर सिंबल ILC लिखते हैं, और सिर्फ हम लोग I लिख दें तो समझो कि आइसोल्यूसिन ये कहलाएगा, ठीक है ना। ILC लिखते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये आगे हमारा और भी है। तो मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं, देखो कि लगभग वेयर इज CH2, सब तो है, यानी ये तो कंपलसरी है सब में, देखो यही ना R है, ये R है, ठीक है ना। आइसोब्यूटाइल, इसमें आइसोब्यूटाइल लिखने दो, CH3 CH3 CH2, अब ये ठीक आइसोब्यूटाइल, ठीक। 2 बीटा एमिनो एसिड, तो बीटा एमिनो एसिड में हम यही क्या बताए कि हम सब पूछ करो कि ये कार्बन अल्फा है, ये अल्फा, तो ये जितने भी एग्जाम्पल हैं वो अल्फा एमिनो एसिड का है। हम यहाँ पर बीटा वाले की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अल्फा एमिनो एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। तो R के जगह पर ये ऐसा है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, वो प्लीज समझे मेरी बात को, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने 4-5 बताए, ये लगभग 20 है, कितने हैं 20 के बारे में। तो आपको ये 20 जो है वो एक दिन में याद नहीं होगा, मैं पहले बता देता हूँ। आपको रोज 4-5 को एडिशनल याद करना पड़ेगा, ठीक है। जिस तरह से आप बचपन में टेबल कैसे याद करते थे, ठीक है ना, उस तरह के टेबल की तरह इसको याद करना है। इसका कोई फॉर्मेट फार्मूला नहीं होता है कि मैं तुरंत बता दूं। हम भी पढ़ाई करते थे तो हमको भी याद करना है, आपको भी वही याद करना है। तो आपको मैं बताता हूं कि हाइड्रोजन, R का जगह हाइड्रोजन है तो ग्लाइसिन पढ़ते थे, R का जगह मिथाइल है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलानिन बोलते हैं, ठीक है ना। आइसोप्रोपाइल है तो वैलिन बोलते हैं, ठीक है। आइसोब्यूटाइल है तो ल्यूसिन बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल है तो आइसोल्यूसिन बोलते हैं। तो ये जो है टर्म, ये आपको याद करना है, R के जगह पर क्या क्या होगा तो उसका क्या नाम होगा, उसको 3 लेटर सिंबल में या 1 लेटर कोड में जो दिया गया है उसको आपको रटना है। नॉर्मली जो नेम स्टार्ट होते हैं उसी के फर्स्ट लेटर कैपिटल होते हैं, लेकिन सब में ऐसा वैलिड नहीं है, ठीक है। तो NCERT अगर आपके पास बुक हो या महाराष्ट्र बोर्ड का बुक हो, उसमें ये 20 को बारे में दिया गया है, ठीक है ना। ओके, और इसको याद करना है। मैं आपको 20 समझाऊंगा लेकिन एक दिन में नहीं, ये बोर होने लगेगा। आज मैं 4-5 बता, नेक्स्ट ठीक है ना। इस तरह से आप करके ये याद करेंगे। इससे जो आगे जो है टर्म उसको ध्यान से देखो। इसमें एक पर स्टार लिखा रहता है और एक में स्टार नहीं लिखा रहता है। इसका मतलब आता है इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड।
तो यहां पर कुछ बताना चाहता हूं, इसेंशियल एमिनो एसिड और एक जो होता है नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, इसके बारे में देखो। एमिनो एसिड अगर आपके बॉडी में नेचुरली, ठीक है ना, जो अल्फा एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है या एमिनो एसिड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है ना, उसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप बन जाती है। इसलिए वो क्या है, नॉन इसेंशियल है। इसका मतलब है कि आपके अंदर वो खुद अपने आप आ जा रहा है, उसके लिए आपको कोई बाहर से सोचने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। और एक इसेंशियल का मतलब ये है कि आपको डाइट के थ्रू आए, यानी आपके बॉडी में फॉर्मेशन वो एमिनो एसिड नहीं बने, बल्कि किसी भी डाइट के थ्रू आप उसको लेते हैं, उसको बोलते हैं इसेंशियली। मतलब उसको आपको काम करना होगा, उसको ये लेना ही होगा, आपके बॉडी में जाना ही होगा बाहर से, उसीलिए उसको क्या नाम दिया गया है, इसेंशियल एमिनो एसिड। यानी इट इज नॉट फॉर्म्ड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में इस तरह के एमिनो एसिड नहीं बनते, ठीक है ना। इट इज ओनली टेकन थ्रू डाइट। जिसको हम लोग डाइट के थ्रू लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, इसेंशियल एमिनो एसिड। और नॉन इसेंशियल एसिड इसके वाइस वर्सा। इसका मतलब ये है कि इट इज फॉर्म्ड इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में होते हैं। नो नीड टू टेक, कोई जरूरी नहीं है थ्रू डाइट, ये डाइट के थ्रू लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल। ये ठीक, जो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं उसमें हम आपको स्टार लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो बाहर से हमको लेना होता है। जैसे ग्लाइसिन जो है वो हमारे बॉडी में बनते हैं, इसीलिए ये हमारा नॉन इसेंशियल है। और हमारा आइसोल्यूसिन जो होते हैं, ठीक है ना, ल्यूसिन जो होते हैं वो नॉन इसेंशियल है, उस पर स्टार लगा दिया गया। तो आप देखेंगे कि जो 20 यूनिट जो दिया गया है बुक में, तो जिस पर स्टार लगा दिया गया वो हमारा नॉन इसेंशियल, और जिस पर नहीं है वो इसेंशियल है, ठीक है ना। ओके, जितने भी अल्फा एमिनो एसिड हैं उनकी क्लासिफिकेशन अगर करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ठीक है, जिसको हम लोग एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, ठीक है, ये न्यूट्रल है। अब जैसे देखो अल्फा एमिनो एसिड में ये पार्ट 20 और ये पार्ट, ये तो इसेंशियल है। इसके अलावा और भी ये एसिड यहाँ हो सकते हैं, NH2 उसमें एमिनो एसिड में और भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख लो, इफ द टोटल नंबर ऑफ NH2 is equal to total number of COOH ग्रुप, तो जितने NH2 ग्रुप है उतना ही अगर COH ग्रुप होंगे, ठीक है ना। हाँ जी, ठीक है, NH2 is equal to the number of COH ग्रुप। इसका अर्थ यह है कि NH2 और COH की नंबर अगर सेम हो जाए तो कॉल्ड क्या होता है,
न्यूट्रल हमारा एमिनो एसिड, एमिनो एसिड्स अगर मान लेते हैं इनकी उस एमिनो एसिड में एक ये है एक ये है, तो दीज आर द न्यूट्रल। जैसे ग्लाइसिन जो है उसमें आपको एक COH है एक NH2 है, तो उनकी नंबर जो होगी वो हमारा क्या हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, क्यों? न्यूट्रल जो होती है वो सॉल्ट की नेचर का होती है। पहले इसको प्लीज लिखेंगे, लिख लिए? ठीक है, यानी NCOH की नंबर इक्वल टू NNH2 की नंबर अगर जिसमें बराबर है उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप इसे देखो, ये NH2 पर एक लोन पेयर है, इसको हम ऐसे दिखाते हैं। तो लोन पेयर जो होते हैं वो बेसिक नेचर होते हैं, और COH जो है वो H रिलीज करता है, इसीलिए ये हमारा एसिडिक नेचर है। अगर ये एसिडिक और बेसिक दोनों इक्विवेलेंट हो जाए तो ये ओवरऑल कैसा बिहेव करेगा, न्यूट्रल के जैसा। इसके उल्टा अगर इनकी नंबर इनसे ज्यादा है तो ये बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा एसिडिक, तो रिजल्टेंट हमारा बेसिक बिहेवियर होगा। इसका मतलब ये है कि NH2 की नंबर, यानी NH2 की नंबर जो है वो COH से अगर ज्यादा हो जाए तो वो हमारा बेसिक कहलाएगा। और इसका उल्टा क्या है कि नंबर ऑफ COH की वैल्यू नंबर ऑफ NH2 से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उस तरह के एमिनो एसिड को हम क्या नाम देंगे, उसको क्या नाम देंगे, ये ऐसा एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ठीक है ना? तो प्लीज नोट इट इसको। तो देखिए इसेंशियल और नॉन इसेंशियल का मतलब समझ में आ गया। ठीक है, हमारे बॉडी के में अंदर बने उसको नॉन इसेंशियल, और जो बाहर से लेना पड़े इसेंशियल। इसकी क्लासिफिकेशन बेसिस ऑफ नेचर के बेस पर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, तो ये नंबर पर डिपेंड करते हैं। तो अगर COH की नंबर NH2 के बराबर हो जाए तो वो एसिडिक, ग्रेटर एंड लेस हो जाए तो उसके अनुसार एसिडिक और बेसिक कहलाएगा। ठीक है, अब देखो ये ध्यान देना है कि नाइट्रोजन पर अगर लोन पेयर है तो ये बेस है। बेस का काम क्या है, एक्सेप्ट द प्रोटोन। ये एक्सेप्ट द प्रोटोन, प्रोटोन किसको पढ़ते हैं, H प्लस का। और जहां पर COOH है इसकी टेंडेंसी होती है H प्लस देना, यानी रिलीज द प्रोटोन। प्रोटोन ये प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है, यानी हम यूं कहें NH2 और ये H प्लस ये एक्सेप्ट करके ये NH3 और ये प्लस। अब इस पर कोई लोन पेयर हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा बेस और ये एसिड, और ये ऐसा होगा तो इसकी नेचर सॉल्ट के जैसा होगा। ठीक, तो मैं ये बताना चाहता हूं कि नॉर्मली एमिनो एसिड में एसिड का H ये एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है ना, और वो सॉल्टिक बिहेवियर शो करता है। यानी मैं यूं कह सकता हूं डायरेक्टली कि नॉर्मली या जनरली एमिनो एसिड behaves as salt. ठीक है, since both have, since they have acidic and basic functional group.
उनके पास एसिडिक और बेसिक दोनों फंक्शनल ग्रुप होते हैं। ठीक है ना, ये ऐसा होता है। अब जैसे आप देखो कि मान लो हमारे पास कोई ऐसा ये है, ऐसा मान लो, इसकी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट ये कर लेगा, तो R CH COO माइनस और ये NH3 प्लस, ये जनरली इस फॉर्मेट में रहेंगे। और ये हमारा नाइट्रोजन जो है वो कटायनिक और ये क्या है एनायनिक, इसी को जीटर आयन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? जीटर आयन। ठीक है ना, ये क्या है? दीज आर द जीटर आयन। एक्वस सॉल्यूशन में इसको रखेंगे तो ये जीटर आयन के फॉर्म में काम करेगा। अब देख लो, ये पार्ट जो है वो बेसिक है, अब ये पार्ट जो है वो एसिडिक है। अब ये इसकी कंजुगेट हो गया, कंजुगेट। तो एसिड का कंजुगेट जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, और NH3 जो है वो इस बेस का कंजुगेट है ना। तो ये हमारा किस बिहेव का हो जाएगा? एसिडिक। फिर से लिखो तो एक बार, मैंने पढ़ा नहीं। तो ये ज्यूटर आयन जो है वो ये ऐसा है, हाँ बायोलॉजी में है, ठीक है ना, ये बायोलॉजी में है। इसको मैं फिर से समझा रहा हूं, ठीक है। ज्यूटर आयन है क्या? तो इसे देखो, ये लिख लिए ना, इसी को और एक्सप्लेन करता हूं। देखो बायोलॉजी में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को ज्यादा समझाया गया है, इसके स्ट्रक्चर को नहीं। केमिस्ट्री में इसके स्ट्रक्चर पर ज्यादा स्ट्रेस डालेंगे, ठीक है। देख लो, एमिनो एसिड के बारे में बताता हूं। एमिनो एसिड्स, अब वो भी कौन सा पढ़ रहे हैं? अल्फा। नॉर्मली इट इज कलरलेस सॉलिड, कलरलेस, ठीक है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ये ध्यान देना है, ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ठीक है ना। सोलूबल इन वाटर, ये वाटर में अल्फा एमिनो एसिड जो है वो हमारा सोलूबल होते हैं, ठीक है ना, ओके। और इनकी हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, कलरलेस ये होते हैं। तो अगर हम कोई भी एमिनो एसिड को COOH ऐसे, ये R और NH2, आप बोले हैं ना समझाने को। तो एसिड किसको बोलते हैं? जब हम, ये तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, अगर हम एक्वस में रख दे, पानी में रख दे, तो ये एसिड क्या करता है? H आयन देगा। अब बेस क्या करेगा? H आयन को लेता है, ठीक है। तो ये कैसा पार्ट बनेंगे? RCH C डबल बॉन्ड O माइनस, ऐसा होगा कि नहीं? और NH2 पर एक लोन पेयर ये ले लेगा तो NH3 लोन पेयर खत्म, ये ऐसा, ठीक है ना। नॉर्मली ये इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ज्यादातर इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा इनके और हल्का सा ये इनके। इसी को तो हम क्या बोले हैं? जीटर आयन। यानी यूं कहे नोट में, इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन अल्फा एमिनो एसिड, एमिनो एसिड एग्जिस्ट इन ज्यूटर आयन, ठीक।
ये NH2 का कंजुगेट है, तो ये एसिडिक बिहेवियर, और ये हमारा बेसिक। ज्यूटर आयन क्या होता है? इट इज ए डाइपोलर। ये NH3 पर प्लस और COO माइनस पर ये नेगेटिव, इसीलिए एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसीलिए ये डाइपोलर्स होते हैं, डाइपोलर्स होते हैं। ठीक है ना? ओके। अब ध्यान देना है कि ये H है, NH2 है, और ये हमारा C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पर NH3 प्लस और R को हम ऐसे लें। दीज आर द ज्यूटर आयन। ठीक है। अब ये क्या करूं कि बेसिक मीडियम कर दो OH में, यानी ज्यूटर आयन को, ये ज्यूटर आयन है, ठीक। अगर ये बेसिक हो यानी बेसिक मीडियम, तो बेसिक मीडियम में ध्यान से देखो, ये हमारा एसिड है और ये हमारा क्या है? बेस। तो बेस बेस को कुछ नहीं करता है, ये बेस बेस को कुछ नहीं करेगा, ठीक है ना? वाटर रिमूव नहीं करेगा। हाँ, ये OH इसका H को निकाल देगा, ये वाटर निकाल कर ये RCH NH2 और ये C डबल बॉन्ड O माइनस आएगा। इसका मतलब ये है कि ओवरऑल ये क्या होगा? एनायनिक फॉर्म हो जाएगा। मीडियम में ये कौन सा फॉर्म का हो जाएगा? अल्फा एमिनो एसिड, तो एनायनिक फॉर्म में हो जाएगा, नेगेटिव फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। अगर हम इसी को एसिडिक फॉर्म में रख दें, H आयन डाल दें ज्यूटर आयन को, तो ये एसिड इस एसिड को कुछ नहीं करेगा, बल्कि ये बेस को प्रोटॉन डोनेट कर देगा। यानी हम RCH NH3 ये प्लस और ये COOH, अब ये पार्ट कैसा हो गया? न्यूट्रल। और ये हमारा क्या हो गया? कैटायनिक। ठीक। तो अगर मैं कहूं कि अल्फा एमिनो एसिड 3 स्टेट में पर ये ज्यूटर आयन में डाइपोलर है, ये एनायनिक है और ये कैटायनिक है, ये डाइपोलर है। देखो, ये हमारा एनायनिक है। अगर हम कहें बेसिक मीडियम में एक इलेक्ट्रोड सेटअप कर दे, इलेक्ट्रोड का मतलब यह है कि उस सॉल्यूशन में 2 रड डाल दे, अब बैटरी से कनेक्ट कर दे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जिसको अटैच करते हैं वो हमारा क्या होता है? एनोड। अब बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जिसको अटैच करेंगे उसको क्या बोलेंगे? कैथोड। बात समझ में आ रहा ना? एनोड और कैथोड। तो प्लीज यहां पर देखो, ये एनायनिक पार्ट है। अगर हम इसमें इलेक्ट्रोड डाल दें, कैटायनिक और एनायन, तो ये किधर माइग्रेट करेगा? तो ये तो नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव की ओर जाएगा। अब पॉजिटिव की ओर जाएगा तो ये इलेक्ट्रोड, ये अनायन एनोड की ओर माइग्रेट करेगा। इसकी माइग्रेशन किधर होगा बताओ? टुवर्ड्स द एनोड। और सिमिलरली इसकी अगर हम लोग इलेक्ट्रोड माइग्रेशन अगर करें तो ये किधर होगा भाई? कैथोड की ओर। ये हमारा कैथोड की ओर होगा और ये हमारा एनोड की ओर होगा। ओके, अब देख लो, अब क्या होता है कि ये पार्ट कैथोड की ओर लेके जाना चाहेगा कैटायनिक, और ये पार्ट जो है वो क्या है? एनायनिक। लेकिन ये पार्ट जो है वो किस नेचर का है? न्यूट्रल। न्यूट्रल है ना? तो यहां पर ध्यान से देखो कि एक ऐसा सॉल्यूशन हम बनाते हैं जिसमें ज्यूटर आयन डाइपोलर हो,
अगर उसमें इलेक्ट्रोड को फ्लोटेशन करें और उसमें कोई माइग्रेशन नहीं हो, ठीक है ना, एट विच या ये करें द पीएच ऑफ सॉल्यूशन, एक ऐसा सॉल्यूशन की पीएच की बात करें, जैसे ये देख लो, ये बेसिक है तो इसका पीएच की वैल्यू क्या होगा, बहुत ग्रेटर देन 7। एसिडिक होते हैं तो पीएच की वैल्यू क्या होता है, लेस देन 7। जितने घटते जाएगी पीएच की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और बेसिक का वैल्यू, पीएच की वैल्यू 7, ये हमारा ऐसा है। लेकिन ध्यान से देखो कि इसकी पार्ट यानी इस पर जितनी नेगेटिव चार्ज है उतना ही मैग्नीट्यूड की ये भी अगर हो, यानी जो चार्ज डेंसिटी इसका है वही चार्ज डेंसिटी अगर इसका हो जाए तो pH इक्वल टू 7 पर ये न्यूट्रल जो है, अब न ये इलेक्ट्रोड की ओर माइग्रेट करेगा, नहीं क्या बोलते हैं ये एनोड की ओर या ना कैथोड की ओर माइग्रेट करेगा। लेकिन देखा गया है कि एक ऐसा pH जिसकी वैल्यू जो होगी 5.6 से लेकर 6.3, ये एक ऐसा pH जो क्या है, लेस एसिडिक नेचर है, लेस एसिडिक नेचर। तो जितने भी अल्फा एमिनो एसिड होते हैं ज्यूटेड आयन के रूप में, अगर उसकी pH की रेंज 5.6 to 6.3 के आसपास अगर होता है इसके बीच में, तो इलेक्ट्रोड के कॉरस्पॉन्डिंग वो कोई भी माइग्रेशन नहीं होता है। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन बिटवीन दिस, ठीक है, ऑल क्या बोलते हैं, ऑल अल्फा एमिनो एसिड डज नॉट माइग्रेट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोड। और उस पीएच को क्या बोलते हैं, दिस पीएच कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एक क्या है, एक सॉल्यूशन का वो पीएच है, हाँ सॉल्यूशन के बारे में पीएच है। इसका अर्थ है कि सॉल्यूशन का वो पीएच, या हम एक सॉल्यूशन का ऐसा पीएच की वैल्यू रखें जो इलेक्ट्रोड के अगर कैथोड और एनोड किसी पर माइग्रेट ना हो, ठीक है ना, तो उस पीएच को हम लोग क्या नाम देते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और जितने भी अल्फा एमिनो एसिड होते हैं वो सब की पीएच की रेंज कैलकुलेट किया गया है, तो 5.6 से लेके 6.3 होते हैं। यानी एसिडिक मीडियम में ही वो हमारा न्यूट्रल बिहेवियर करेगा, और जब ना कैथोड की ओर जाएगा ना एनोड की ओर जाएगा तो बिहेवियर क्या होगा, न्यूट्रल बिहेवियर। तो न्यूट्रल बिहेवियर का मतलब ये होता है, ठीक है, न्यूट्रल बिहेवियर का मतलब ये है कि माइग्रेशन किसी ओर न हो, ठीक है। लेकिन एसिडिक एमिनो एसिड, बेसिक का एमिनो एसिड, न्यूट्रल एमिनो एसिड का मतलब ये होता है, ठीक है ना, कि जिसमें नंबर ऑफ NH2 इक्वल टू COH हो, लेकिन न्यूट्रल बिहेवियर टुवार्ड्स द इलेक्ट्रोड अगर है तो वो हमारा एसिडिक मीडियम का वो पीएच के बारे में बताना होगा। तो पहले इसे नोट करें, प्लीज नोट इट। ठीक है, कैन दिस पीएच चेंज व्हेन चेंज टाइप ऑफ, हाँ यानी मैं कितने कहा हूं 5.6 to 6.3, मतलब एक वैल्यू थोड़े, बहुत वैल्यू है, ठीक है। इसमें अलग अलग वैल्यू यूज होगा, जितने भी अल्फा एमिनो एसिड है तो किसी का 5.6 होगा, 5.8 होगा, 6.1 होगा, 5.9 होगा, 6 होगा, यानी ये इसी की जितनी अल्फा एमिनो एसिड का रेंज हमने बताया है, और इसी रेंज पर वो क्या होते हैं, न्यूट्रल बिहेवियर होते हैं।
वो इलेक्ट्रोड की ओर न आते हैं और नहीं जाते हैं। ठीक है ना, बस 5 मिनट और। तो ये ऐसा है। अब इसे देखो, इसके बारे में अभी मैं बात कर रहा हूं कि न्यूट्रल जितने भी एमिनो एसिड हैं, यानी न्यूट्रल बिहेवियर एमिनो एसिड, ठीक है, और उसकी पीएच की जो वैल्यू होगी उसको क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो एक पीएच है। कहा जाएगा व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, इसका मतलब क्या है, हमको उस सॉल्यूशन की पीएच के बारे में बताना है जिसकी माइग्रेशन जो होगी, जिसके करस्पॉन्डिंग ना वो एनोड की तरह हो सके और न ही कैथोड की तरह हो सके, उसी को आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बोलेंगे। और उस टर्म पर ये जो है एमिनो एसिड एट दिस पॉइंट, ध्यान से देखो, एट दिस पॉइंट एमिनो एसिड आर insoluble in solution। ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये लिखना चाहता हूं कि जैसे आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होगा वो न्यूट्रल बिहेवियर का होगा, अब उसमें अल्फा एमिनो एसिड जो होगा आयन फॉर्म में तो रहेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल हो जाएगा। इनसोल्यूबल का मतलब होगा दैट इज प्रीसिपिटेट, वो प्रिसिपिटेट हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो अल्फा एमिनो एसिड यानी अल्फा एमिनो एसिड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सॉल्यूशन, और वो भी किस पर, एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर वो क्या हो जाएंगे, वो प्रिसिपिटेट हो जाएंगे, इनसोल्यूबल हो जाएगा, जिसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अभी बताए हैं कि कोई भी प्रोटीन्स हो, आगे बताने वाले ही है, हाइड्रोलाइसिस करा दे में डालेंगे तो प्रोटीन जो है अगर हाइड्रोलाइसिस करके अल्फा एमिनो एसिड होगा, एमिनो एसिड बनेगा। अगर इसकी पीएच जो है वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर हो जाए, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट के बराबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल। अगर ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट नहीं है तो दीज आर द सोल्यूबल, और जब इनसोल्यूबल है तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हाइड्रोलाइसिस होगा प्रोटीन का और अल्फा एमिनो एसिड को हमको सेपरेट करना होगा, तो हमको क्या करना होगा, उस अल्फा एमिनो एसिड के आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पर ले जाना होगा, यानी उस सॉल्यूशन के पीएच को हमको ऐसा मेंटेन करना होगा जिसे प्रिसिपिटेट दिस गिव व्हाइट प्रिसिपिटेट या अनदर, यानी ये एमिनो एसिड की कोई कलर नहीं होती है, वो कलरलेस क्रिस्टलाइन होते हैं। ठीक है ना, तो वो कलरलेस क्रिस्टलाइन कंपाउंड होगा, उसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, तो लेकिन वो क्या है, सेपरेबल हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड अंदर रहेगा, सॉलिड अलग हो जाएगा। अगर सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा है तो नीचे बैठ जाएगा, डेंसिटी कम है तो उसके क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मैंने आपको, टाइम हो गया है, बस थोड़ा सा ये बोलकर मैं खत्म करूंगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि एनसीईआरटी बुक या महाराष्ट्र बुक या एनी टाइप ऑफ बुक आपके पास है जिसमें अल्फा एमिनो एसिड की नंबर 20 दिया है, 20, तो जिसमें हमने 3, 4, 5 के बारे में बताया है, वो आर के जगह पर क्या क्या रखेंगे जिससे अलग अलग नाम अल्फा एमिनो एसिड पड़ेगा। तो कम से कम 5 तो मैंने बता दिया, 5 अपने से और याद करके रखेंगे। ठीक है ना, डेली 5-5 अगर रटेंगे तो आपको वो 20 याद हो जाएगा। ठीक है, और ये टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।